हेलो। दे दे सर अब। लिंक भेजा नहीं किया अभी तक। आप दे दो दे दो दे दो। भेजा नहीं है वही भैया अभी। भेजो अभी तक। भेजो। Anushka, your voice is not clear. Can you please again check your mic? Hello. Is it clear now? Yeah, it is clear now. Okay. Good evening, everybody. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
Very good evening to all. I am Anushka, here to welcome you on the behalf of International Civil Services Society. First, to introduce you to IAS Next. It is a premier institute for UPSC Civil Services examination preparation headquartered in Delhi. They have a faculty panel which includes professors, ex-civil servants, and subject experts. Since its inception, Next IAS has been able to build a deep association with its students due to its constant and continuous efforts to guide and mentor every student of Next IAS family through quality teaching and personalized support throughout students' journey as a servant aspirant. In UPSC Civil Service Examination 2019, Next IAS produced 4 ranks in top 10 and more than 47 selections in top 100 with overall 327 final selections. Now welcome our honored guest, IPS Rahul Goyal sir. I would like to extend my heartfelt welcome for sir to be present here with us. Sir completed his BTech from IIT Kharagpur in mechanical engineering. He started his preparation in 4th years of BTech and cleared UPSC CSC in first attempt. Currently, he is an IPS officer on probation with State of Odisha. It is such an honor to have you amongst us. I would also like to extend our heartfelt gratitude to Anuj sir, who helped us arrange this meeting and helped us throughout the meeting. Now, as we all know, the topic for today is balancing civil service preparation with college studies. But firstly, I would like sir to tell us about his journey as becoming an IPS officer. Sir, please, you may say a few words of wisdom. Thank you, Anushka, for introducing me. So, as you people know that basics about me, my name is Rahul Goyal. I've done my BTech in mechanical engineering from IIT in 2018, and it was a 4-year BTech course. After that, in my 4th year, I started preparing for UPSC, and in 2019 attempt, I secured rank 168. So that is a very brief introduction about me. I will go into some detail about why I opted for UPSC or the civil services route. So I belong from Kalahandi, Odisha, which is one of the most backward districts of India. And having lived there for nearly 15 years of my life till my matriculation, I have seen the abject kind of poverty or drought conditions which anyone can ever see. In 1984, there were cases of mothers selling their child. In 1984, there were cases of mothers selling their children for 3 rupees, which made our late Honorable Prime Minister Rajiv Gandhi say that when 1 rupee goes out of Delhi, only 15 to 16 paise reaches Kalahandi or areas like that. So I come from that area, and having seen those miserable condition of people, I knew from the beginning that okay, is it okay if I can speak in Hindi? Yes, sir, sure. Please. Yeah. So उनको देखते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि यार काश मैं कुछ कर सकता हूँ. आप बचपन से देखते आ रहे हैं. I was born in 1997. आप मतलब quite a fair time to lived in that area in that condition. आपको हमेशा से लगता है कि यार काश मैं कुछ कर सकता. And I myself belong from a family which was very poor. So जब आप वैसी हेलो राहुल सर अनुज दिस साइड. हाँ बोलिए सर. यस सर. बस एक वीडियो आपका अभी ऑफ जा रहा है तो आप उसको ऑन कर सकते हैं क्या? रेस्ट इज फाइन. वीडियो ऑन है सर. आई डोंट नो मेरे पास Anuj, video is visible. अनुज का विजिबल है. Yes, sir, he is visible. ओके ओके फाइन फाइन. Okay, sir. प्लीज कंटिन्यू सर. सो जब आप वैसी जगह से होते हैं तो जैसे मैंने बोला कि आप कुछ करना चाहते हैं. एंड जब मैं वहां से निकला, मैं कोटा गया, आई ज्वाइन IIT. तब IIT में जाके आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि यार मैं क्या कर सकता हूँ. देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल रूट जैसे कि बोलते हैं. आप IIT से जाके ग्रेजुएशन करके किसी टेक कंपनी में जॉब कर सकते हैं, या फिर आप एक फाइनेंस में रूट में जा सकते हैं, या फिर आप MBA करने के लिए जा सकते हैं, या फिर आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं. देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. आप हायर स्टडीज के लिए MTech या फिर PhD करने के लिए जा सकते हैं, जो कि आपके लिए भी वैलिड होगा. जैसे जो कॉमर्स के हैं, दे माइट वांट टू डू MCom, और या फिर आगे आप लॉ वगैरह में जो भी है. तो जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं तो आप इवैल्यूएट करना शुरू करते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है. एंड मेरी
लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिससे कि मुझे पता लग गया, लाइक ओके, सो कुछ लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि हाँ मुझे ये करना है, कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें नहीं पता होता क्या करना है, एंड आई एम दैट सेकंड काइंड ऑफ पर्सन। मैं एलिमिनेट करता गया। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में इंटर्नशिप पे गया था, एंड इट वाज अ वंडरफुल इंटर्नशिप एक्सपीरियंस फॉर मी ऑफ 2 months। बट मुझे ये पता लग गया कि मैं आई एम नॉट सुटेड फॉर अ कॉर्पोरेट सेटअप, बिकॉज वहां पे मैं कुछ वैसा नहीं कर पाऊंगा जिसमें कि मैं अपनी खुद की पर्सनल छाप छोड़ सकूं, मेरा पर्सनल इम्पैक्ट कुछ हो, वैसा वहां पे नहीं लगा मुझे। मैं शांघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी गया था, जो कि शांघाई चाइना में है, फॉरेन ट्रेनिंग के पर्पज से। अगेन आई रियलाइज दैट हायर स्टडीज और एमटेक और पीएचडी इज नॉट माय कॉलिंग। सो अगेन, जब वो कहते हैं ना कि जब ये टीवीएस पिक्चर्स में बहुत अच्छी लाइन है कि जब इंडिया के ग्रेजुएट्स 9 to 5 जॉब से बोर हो जाते हैं, देयर आर 3 ऑप्शंस, आईएएस, एमबीए या फिर खुद का स्टार्टअप। तो खुद का स्टार्टअप तो मेरे पास कुछ था नहीं, एंड एमबीए करने का मेरे को कोई ऐसा इंटरेस्ट था नहीं। सो अगेन जो रुका हुआ था यूपीएससी था। सो मेरे को मेरा पाथ क्लियर हो गया था। तो in the 4th year itself I started preparing for UPSC, and I did not even sit for placement. So that is how I came to know that I want to go for UPSC. Now this was more or less about how I went through my journey, और मैं जैसे कि मेरा माइंड कैसे गया था। बट मैं आप लोगों के लिए कुछ बताना चाहता हूँ, लाइक व्हाई यू शुड डू यूपीएससी। सो 2 weeks बैक मैं उड़ीसा में गजपति डिस्ट्रिक्ट करके है, वहाँ पे मेरे भैया ही हैं, मतलब टाउन के भैया, तो मैं उन्हें भैया कहता हूँ। वो वहाँ पे कलेक्टर हैं, तो मैं उनसे मिलने गया था। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या है आपके इस जॉब में जो आपको इतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, एंड उनका एक सिंपल रिप्लाई था, जब कोई गरीब, छोटे से गांव का एक गरीब आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर के आता है कि सर मेरे यहाँ पे हैंडपंप लगवा दो, या मेरे घर में बिजली का बल्ब लगवा दो। आप दिल्ली में रहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, या फिर अर्बन सिटीज में रहते हैं, आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी कोई नई चीज नहीं है। लेकिन जो लोग थोड़े से भी रूरल एरिया में रहते हैं उन्हें आज भी पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इंटरमिटेंट होती है, जाती आती रहती है। एंड जब आप किसी को एक कंप्लीटली बिना बल्ब से पूरे के पूरे बल्ब में लेके आते हैं, तो उनके लिए वो कितना बड़ा चेंज होता है। वो डेल्टा जो है उनके लिए बहुत होता है, एंड इस सर्विस के थ्रू आप वो डेल्टा को जो अचीव कर सकते हैं। मेरे एक और उन्होंने भैया हैं जो कि नुआपड़ा में है, नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में ही है। ही इज एसपी, आईपीएस ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। मैंने उनसे पूछा था कि अगेन एक आईएएस से पूछ लिए ना, एक आईपीएस से क्यों। आप सिंपल सा सी चीज सोचिए कि अगर आपके घर में चोरी होती है, या फिर टाउन में किसी का मर्डर हो जाता है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बट आप किसके पास जाएंगे दौड़े दौड़े? You will only go to that person who can help you, that is the police, that is the instant effort. So जहां पे एक आईएएस एक डेवलपमेंटल वर्क करके पूरे एक जगह के लैंडस्केप को बदलने की ताकत रखता है, वहीं पे एक एसपी इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करने की भी ताकत रखता है। वैसे ही आपका रेवेन्यू, इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो कि देश के टैक्स कलेक्शन में हेल्प करती है, रेलवे सर्विस जो कि देश के पूरे रेलवे को रन करने में हेल्प करती है। सो ये अलग अलग सर्विसेज अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन पूरा करती हैं, एंड इन सर्विसेज के जरिए आप जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, मैं एक चीज यहाँ पे मैं आउटसाइड में बोल देना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सर्विस बड़ी है कोई सर्विस छोटी है, बिकॉज वो पर्सनल कंसिडरेशन होता है, आप जिस चीज से ज्यादा बेहतर सेटिस्फेक्शन डिराइव कर सकते हैं वो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि अभी जैसे सपोज किसी को टीचिंग पसंद है, वो टीच करके भी अच्छा कर सकता है, बच्चों को पढ़ा के उनका भविष्य बदल सकता है। और जो जिसको टीचिंग पसंद है वो आईएएस में घुस के एक जिले या फिर एक स्टेट का टीचिंग लैंडस्केप को बदल के उससे कई ज्यादा बच्चों का भी भविष्य बदल सकता है। सो इट्स द वे यू ऑप्ट, दैट इज योर कॉलिंग। बट जो ये सर्विसेज आपको सेटिस्फेक्शन देती है, जो बेसिकली द स्कोप ऑफ वर्क, एक उनकी फाइलों का डेस्क में स्किल डेवलपमेंट, जो गजपति डिस्ट्रिक्ट पालाखेमुंडी टाउन है वहां का अर्बन लाइटिंग का था, आपका विलेज में हैंडपंप्स वगैरह का था, इलेक्ट्रिसिटी का था, वाटर कंट्रोल का था, फायर का था। मतलब वो एक इंसान के नीचे बोलते कि वो जिले का माई बाप, अगर वो उसको कुछ हो गया तो दैट डिस्ट्रिक्ट इज एट कंप्लीट रिस्क, वैसा सीन हो जाता है। सो आपके ऊपर जब उतना भार होता है तो आप उतने ही रेस्पॉन्सिबली तरीके से अपनी ड्यूटी जो अपने काम का निर्वाह करते हैं, और आपको वो काम करने का मौका भी मिलता है। तो अभी सपोज छोटे और बताऊं, मेरे एक माजी हैं, दूर के माजी हैं कि मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट, वन ऑफ द वर्स्ट ट्राइबल इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, वहां पे जिला पाल थे, कलेक्टर थे।
उनके टेन्योर में उन्होंने एक 5 किलोमीटर का ब्रिज 11 दिन में बनवा दिया था। और उतने कम टाइम में एक ब्रिज बनवाने का नतीजा ये हुआ कि जो 2 विलेज मतलब डिस्कनेक्टेड थे, वहां पे नक्सल मूवमेंट खत्म हो गई बिकॉज ऑफ दैट सिंगल ब्रिज। वहां पे पूरी की पूरी जो भी नक्सल वायलेंस थी खत्म हो गई। सारे सरकारी प्रोग्राम्स उस जो छोटे विलेज तक पहुंच पाए। सो अब एक चीज सिंपल समझिए कि आप कितना बड़ा कुछ कर पा रहे हैं। आप ठीक है, आप एक कॉर्पोरेट में सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, आप उस कॉर्पोरेट का संभाल रहे हैं, बट डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन जहां पे आता है, अगेन थोड़ा सा ज्यादा सेटिस्फेक्शन निकलता है, मेरा ऐसा मानना है, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। तो ये बात हुई कि जॉब कैसा है। एंड मैं क्योंकि आईपीएस से हूं तो मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूंगा कि आईपीएस की ट्रेनिंग कैसी होती है, बिकॉज आई फाइंड इट रियली एक्साइटिंग। सो इट विल बी ऑफ समवेयर अराउंड 20 मंथ। 10 मंथ का होता है फेज 1, 8 मंथ का होता है फेज 2 एंड 2 से 3 महीने का होता है फेज 3। फेज 1 जो होता है वो नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होता है, एंड फेज 2 जो होता है डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, एंड फेज 3 जो होता है उसमें आप वो अगेन हैदराबाद में होता है कंबाइंड विद फॉरेन अटैचमेंट्स। सो इन ट्रेनिंग में एक अटैचमेंट्स नाम की चीज होती है, जिससे कि बेसिकली व्हाट इट मींस इज दैट आपको अलग अलग जगह भेजा जाएगा सो दैट यू गेट टू नो हाउ थिंग्स वर्क। So it starts with the NPA training, National Police Academy training starts with a very rigorous physical activity। मतलब रोज सुबह से 2 से 3 घंटे की एक्सरसाइज, 5 घंटे की क्लासेस, अ डे का बता रहा हूँ। इट स्टार्ट्स एट 5, 8 बजे तक एक्सरसाइज, 8 बजे तक आप नहा धो करके आइए। 9 से क्लासेस शुरू हो जाएंगी जो कि 2 बजे तक चलेंगी। 2 से 3 लंच ब्रेक होता है। 3 से लेकर 5 बजे तक गेम्स का पीरियड होता है और राइफल्स वगैरह का भी पीरियड होता है। उसके फिर 5 से 6 बजे के बाद एक और ब्रेक होता है। फिर उसके बाद आपका पर्सनल टाइम होता है। बाय 8 to 9 यू गो टू स्लीप। सो जो ट्रेनिंग्स होती है, जो सुबह की फिजिकल ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको कार्डियो कराया जाता है, वेट ट्रेनिंग कराया जाता है, जो बेसिकली दे मेक यू फिट एनफ टू रन 5-10 किलोमीटर टू चेज अ क्रिमिनल। ओके, देन वो आपको लॉज के बारे में बताते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, जिससे कि जो कि आपको हेल्प करेंगे अपने सर्विस में। देन आईपीएस में इट इज मैंडेटरी टू प्ले टू सो दैट यू कैन मैंडेटरी कि आप 5 गेम खेलना जानते हैं। पहला है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस और 2 हैं एंड आई डोंट रिमेम्बर बिकॉज मैं अभी ट्रेनिंग में गया हूँ एंड आई एम स्टिल ऑन लीव। एंड देन जिनको राइफल्स की चलाना शौक है उनको राइफल सिखाए जाते हैं, ऑब्वियसली पुलिस में है ही, वेपन्स का काम है। एंड इट रेंजेस फ्रॉम एवरीथिंग, पिस्टल, AK-47, जो ग्रेनेड, एवरीथिंग। देन बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर आपको 3 चीज आनी चाहिए, वेपन्स ट्रेनिंग, स्विमिंग एंड घुड़सवारी, वो भी सिखाई जाती है। एंड अटैचमेंट्स में आपको फिर एक इलेक्शन अटैचमेंट होता है, जिसमें कि आप जैसे अभी वेस्ट बंगाल वगैरह में इलेक्शन था तो मेरे जो बैचमेट्स हैं वो भी वहां गए थे देखने की कैसे इलेक्शन मशीनरी काम करती है, कैसे हैंडल किया जाता है, बिकॉज एक एसपी के हाथ में होता है कि उस जिले में इलेक्शन पीसफुली कंडक्ट हो जाए। फिर एक होता है ITBP अटैचमेंट विच इज इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स अटैचमेंट, जिसमें कि आपका एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं, बंजी जंपिंग, आपका डाइविंग, जो आपको गंगा में लेके जाएंगे ऋषिकेश, वहां पे आपसे राफ्टिंग करवाएंगे। इट्स कंप्लीटली मतलब जितनी चैलेंजिंग है उतनी ही अमेजिंग भी है। देन एक ग्रे हाउंड अटैचमेंट होता है, जिसमें कि वो लोग आपको आंध्रा के जंगल में 4 दिन तक छोड़ देंगे विद मिनिमलिस्ट सप्लाई एंड आपको वहां से आना है। यू विल हैव गन्स एंड यू हैव द पावर टू यूज इट, मतलब उस लेवल तक वो ट्रेनिंग जाती है। तो एक होता है आपका फॉरेन अटैचमेंट, दे विल सेंड यू टू इजराइल और सिंगापुर और कोरिया और रशिया टू स्टडी द बेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो आप समझ सकते हैं कि ये सर्विस खाली आफ्टर सर्विस में नहीं है और ट्रेनिंग में भी बहुत ज्यादा मजा आता है। So I think I've given a very broad review about it. Over to Anushka. Okay, sir, thank you for such nice words. We all can agree that you have well defined that power comes great responsibilities. And of course, the IPS training, I think we all didn't have such an wide understanding of what happens within the training period. So I would like to come to our question of how to balance our civil service preparation with college. As you started your preparation in the 4th year of BTech, we all are striving to do something like that. So it's very difficult to understand from where to start. The process is somewhat understandable, but where to start is the main question arised by a lot of people. So if you could say something on that, how to start the preparation, how to keep this first step. A disclaimer first.
आप क्योंकि कॉलेज में हैं, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। सी, आप कॉलेज में हैं, ये आपके पास एक सिक्योर ऑप्शन है, आप इसके बाद जॉब करके अपने आप यू कैन बी इंडिपेंडेंट। बट अगर आप डायरेक्टली कॉलेज में ही प्लंज ले लिए एंड आप यू आर लाइक कि मैं एकदम यूपीएससी की तरफ निकल जाऊंगा, फर्स्ट से यूपीएससी करूंगा, कॉलेज की तरफ ध्यान नहीं दिया, 6 ग्रेड पॉइंट या फिर 60% के साथ पास हो रहे हैं एंड यू डोंट हैव एन ऑप्शन लेफ्ट आफ्टर द कॉलेज, देन आपने अपना कॉलेज भी वेस्ट कर दिया और यूपीएससी की प्रिपरेशन भी गई। सो डोंट डू दैट। एंश्योर दैट कि आपके कॉलेज में इतने इतने मिनिमम ग्रेड्स हो दैट यू कैन लैंड अप अ जॉब आफ्टर इफ यूपीएससी प्लान डज नॉट वर्क्स आउट। सो दैट इज द बेसिक प्रेमाइस ऑन विच एवरीथिंग रेस्ट। बिकॉज मेरे साथ ये हो चुकी है गलती। मेरा 7th सेमेस्टर में, मेरे 4th ईयर के पहले सेमेस्टर में मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी एंड मैं कुछ ज्यादा ही एंथुसियास्टिकली कर लिया था। सो मुझे मेरे बीटेक प्रोजेक्ट में डी मिल गया था एंड आई नेवर स्कोर्ड बिलो बी। इट एक्चुअली पुल्ड माय होल ग्रेड डाउन। सो फिर मुझे मेकअप करने के लिए फिर 8th सेमेस्टर में काम करना पड़ा था। सो डोंट डू दैट। टू स्टार्ट विथ, सी, आपको ये तो पता होगा कि आप आपके 10th में कैसे थे एसएसटी में। हिस्ट्री अच्छी लगती थी, नहीं लगती थी, प्राइमरी बोरिंग लगती थी, बट अगेन समझ आती थी कि नहीं। आपको ये पता है ना कि अकबर क्या क्या था या फिर चोलास क्या कर रहे थे, कुछ तो पता होगा ही, नाम सुने होंगे। अगर आप उतना रिकॉल कर सकते हैं और आपको लगता है कि यार मैं अच्छा था 10th में, सो आई विल सजेस्ट कि आप बेसिक एनसीईआरटी करिए। लाइक आपका 11th 12th के एनसीईआरटीज हैं, थोड़ा इन डेप्थ और ब्रॉड होती हैं, बट दे गिव यू गुड स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर आपको उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है खुद को, आप क्लास 6th के एनसीईआरटी से भी शुरू कर सकते हैं। बट इवेंचुअली आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि ठीक है, वेदर यू आर सूटेड टू इट और नॉट, सो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिए। एंड शुरू करने के लिए बेस्ट थिंग्स आर एनसीईआरटीज, बिकॉज आपकी कोर्स, ट्रस्ट मी, मतलब यूपीएससी डायरेक्टली आस्क्स फ्रॉम एनसीईआरटीज। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन 11th के एनसीईआरटी से आते हैं, 11th की ज्योग्राफी से आते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो अगर आप एनसीईआरटी समझ रहे हैं और एनसीईआरटी अच्छे से कर पा रहे हैं, इट मींस दैट यू हैव एक्चुअली गॉन अ गुड वे इनटू द यूपीएससी प्रिपरेशन। उसके बाद आपकी जो बेसिक्स बुक्स आती हैं, मतलब सी, एसएसटी के लिए आप एक ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनकी जितनी भी एनसीईआरटीज आती हैं आप बेसिकली कर सकते हैं। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। उसमें देखिएगा, पॉलिटी में एक थ्योरेटिकल एनसीईआरटी थी, वो करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क इज एनफ। एंड बाकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो पूरी करनी ही पड़ेगी। एंड इकोनॉमिक्स में भी इंडियन इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कर लेने से एनफ है। ये हो गया। इसके बाद आपको थोड़ा इंडेप्थ पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है वो पढ़ लीजिए। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपको सप्लीमेंट करना है तो विपिन चंद्र है, जो कि पुरानी एनसीईआरटी है, एंड स्पेक्ट्रम है। एंड इसके बाद आपके लिए क्या आता है, I think that pretty much makes more or less of it with regard to starting of the UPSC preparation in college. Yeah, Because अगर आप उससे थोड़ा जाएंगे तो heavy हो जाएगा। Yeah. Okay, sir, so coming to next point, as we also that because of college we have a lot of pressure already due to exams, assignments. So managing that with our test papers or ongoing our syllabus or with UPSC also, like both the books we have to study, both the books we have to do double test, we have to do everything in a double manner. So do you think it's a lot of pressure when we start that part of us start for the UPSC preparation? Do you think it's a lot of pressure to take? जब मैं गजपति गया था, जो वहाँ पे कलेक्टर थे, शाम को मैं गया था at around 5 PM in his office, and there is a stack of 400 pages in front of him, and he said that I need to peruse it in nearly 30 minutes. So obviously he is not going to go through the 400 papers in 30 minutes, because obviously उनके subordinates हैं जो कि काम करेंगे। But the point being, उन 400 में से भी उनको कुछ तो ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो पढ़ना होता है, मोस्टली जो कि सीनियर लेवल ऑफिसर से आए हैं या फिर जो कि उनका डायरेक्ट इंटरवेंशन चाहिए होता है। एंड दोज विल कंस्टिट्यूट समवेयर अराउंड 100-150 पेजेस, उन्होंने खुद ही बताया था। तो आप एक चीज समझिए, जब आप उतना प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, सो दिस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ इट, यू नीड टू स्टार्ट समवेयर। एंड ट्रस्ट मी, जब आपका मेंस का एग्जाम आता है तो दिन में 12-13 घंटा पढ़ना कोई छोटी बात नहीं होती है, बट यू डू इट रेगुलरली, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो जैसे आप पूछ रहे हैं कॉलेज में, सी, मैंने आपको बोला कि करिए, मतलब अपना ग्रेड्स या फिर अपने परसेंटेज खराब मत कीजिए। पहला रिक्वायरमेंट वो है। अगर आप एक बेयर मिनिमम मेंटेन करके चल रहे हैं कि मेरे को इतना आने से हो जाएगा तो गुड है। उसके अदरवाइज सी, आप एक 2 से 3 घंटा तो आप रोज निकाल ही सकते हैं, उतना निकल जाता है। 2 घंटा रात को निकल जाता है, सुबह निकल जाता है, या फिर आप वीकेंड्स को यूज कीजिए। वीकेंड्स को पूरी तरीके से अगर आप यूज कर सकते हैं, अगर आप मतलब जैसे कि मैं क्या करता था, मैं वीकेंड्स में कंप्लीटली सुबह जल्दी उठता था रात तक, आई यूज्ड टू स्ट्रेच इट 12 to 14 आवर्स।
तो करीबन 25-26 घंटे निकल जाने से इट वाज एनफ। तो वो दैट वर्क्स एज अ गुड स्ट्रेटजी। Yeah, sir. So if we had like more time, you start in fourth year, but if we are in first year only as of now, so if we started from second year or third year, do you think it would be like we have more time for everything, and even we don't stretch ourselves to the 14 hours on weekends, we can still do it with a if we maintain a time limit on daily basis. Do you think that strategy would be a good thing to start with? आपने जो अपने क्लास 6 के एनवायरनमेंट में पढ़ा था वो आपको याद है अभी? याद नहीं होगा, राइट? No, no, sir. तो आप जब अपने फर्स्ट ईयर के कॉलेज में पढ़ेंगे, हाउ डू यू सपोज कि आपको 4 साल बाद वो याद रहेगा? ऑल यू आर गोइंग टू रिवाइज इट। बट मैं आपको सिंपल सा मतलब एग्जांपल देता हूँ। मैं फोर्थ ईयर के शुरुआत में लक्ष्मीकांत किया था, एंड फोर्थ ईयर के एंड में लक्ष्मीकांत किया था, एंड आई रिक्वायर्ड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम आई नीडेड टू रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो पहली बार करावा भी वेस्ट किया और दूसरी बार करने में भी ज्यादा टाइम लग गया। सो सी द पॉइंट बीइंग कि आप एक कॉलेज में आए हैं, आप एक चीज समझिए, यूपीएससी ग्रेजुएशन के बाद क्यों नहीं होता? अगर ऐसा होता तो वो लोग 12th के बाद ही घुसा देते ना। यूपीएससी ग्रेजुएशन के बाद इसलिए होता बिकॉज एवरीबडी ब्रिंग्स इन अ न्यू पर्सपेक्टिव टू द एडमिनिस्ट्रेशन। अदरवाइज उनको एक ही कैटेगरी के बंदे मिलेंगे। उनको क्लर्क्स नहीं चाहिए, दे नीड गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स, गुड लीडर्स। एंड लीडर्स इवॉल्व होते हैं, एंड वो इवॉल्व तब होते हैं जब आप अपने काम को सही से करते हैं। सी आई मेंटेन वन रूल दैट आप अपने फील्ड में एक्सेलेंस मेंटेन कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप अपना काम किसी भी फील्ड में अच्छे से नहीं करेंगे। तो जब आप ग्रेजुएशन में हैं, आप करना चाहते हैं, आप ये असेस कीजिए कि अगर आप फर्स्ट ईयर में टाइम देंगे या फिर फर्स्ट ईयर में आप अपने आप को पर्सनैलिटी डेवलप करने में टाइम देंगे, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मेरे साथ भी आईआईटी में बेसिकली प्रीटी मच फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कोई स्टडी नहीं होती है ऐसे करके, वो एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ के जाते हैं, ग्रेड्स के आते हैं। बट स्टिल वी यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर, बिकॉज अब मैं जैसे कलाहांडी से हूँ, मेरी कोई पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, मैं कभी कोई बड़े स्कूल में नहीं गया। लाइक मेरे जितने भी दोस्त हैं वो वहीं पे कोई किराना की दुकान में बैठा है और किसी की गैरेज है, किसी का ऑटोमोबाइल शॉप है, कोई ऐसा तोप नहीं मार लिया है। जो सीए बना है वो वहीं पे फॉर्म खोल के बैठ गया है। बट कॉलेज के पहले कुछ चंद साल आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का स्कोप देते हैं, आपको उसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है। आप ये कर सकते हैं कि वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पीरियड को यूपीएससी की तरफ अलाइन कर दीजिए। कैसे? लीडरशिप लेना, सोशल थिंकिंग लाना, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप लाना, एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग डेवलप करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करना, कुछ अच्छी आदतें डाल लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ना जो कि आपको लाइफ लॉन्ग काम देगी। तो वो करना ज्यादा बेहतर रहेगा। Okay, sir. So, sir, I would like to pass on the mic to Komal and Rashika. They will be asking you questions that our participants have asked us beforehand. So, we'll be asking on their behalf. Okay, sure. Okay, Komal and Rashika, please start. Good evening, sir. Good evening. Hello, mates. So now, without appreciating any delay, let's move on to the most awaited question answer sessions. And the very first question was raised by Arpit, which says, what are the key points that one needs to keep in mind while preparing for CST? The first thing is it's a marathon. आप 4 दिन 12 घंटा पढ़ लिए, 5वें 6वें दिन कुछ नहीं पढ़े, एंड 7वें दिन आप बोल रहे हैं कि मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इज नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर। You need to consistently give efforts on a regular basis for maybe 2 years, 3 years। यार देखिए, 1 साल की प्रिपरेशन लगती है, 1 साल की एग्जाम लगती है। दैट इज इन द बेस्ट केस कि आप पढ़ के क्लियर भी कर ले रहे हैं और आपको आईएएस आ भी जा रहा है, या फिर आपको प्रेफरेंस सर्विस मिल जा रही है, जो कि यूजुअली बहुत ज्यादा टफ होता है। इम्पॉसिबल नहीं होता, बट बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। सो आप ये नहीं कर सकते कि आप एकदम से पढ़ने कुछ दिन पढ़े और फिर छोड़ दिए। आपको कंसिस्टेंटली रोज 7-8 घंटे पढ़ के एफर्ट डालना पड़ेगा। दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? So the question says, what are the key points that one needs to keep in mind while preparing for CST? So पहला हो गया कि मैराथन है, बहुत लंबा चलने वाला है। So आपको डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। Second thing is you need to find out why are you doing it? Because आप बात समझिए, आप अपने लाइफ के कुछ पीक प्रोडक्टिव ईयर्स को एक एग्जाम के पीछे झोंक दे रहे हैं,
and there needs to be a very substantial reason behind it, which is very important. The third reason would be कि आप अपने मतलब एक सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए आपका, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या होता है कि जब एग्जाम रहता है, स्ट्रेस रहता है, आपके पास जॉब नहीं है, आपको यू फील लाइक यार मेरे दोस्त ऐसे कर रहे हैं, मतलब मेरे साथ होता था दैट मेरे कुछ दोस्त हैं वो आर अर्निंग 32 lakhs 34 lakhs राइट नाउ, एंड मैं यहाँ पे बैठ के एग्जाम दे रहा हूँ जो कि मेरा पता नहीं होगा नहीं होगा. सो आपको एक सपोर्ट ग्रुप चाहिए होता है जो कि आपको कंसिस्टेंटली मोटिवेट करता रहे, बैकअप देता रहे. दैट इंक्लूड्स योर पेरेंट्स, सम 1 or 2 रियली गुड फ्रेंड्स जो कि आपको समझते हों. एंड द फोर्थ थिंग वुड बी कि आप जो कर रहे हैं, ठीक है, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाइए अपना कि मैं कैसे जाऊं, क्या करूं, एंड कैसे पढ़ूं, एंड दैट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम. ये इतनी जल्दी होगा नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है इस चीज के लिए. आप उसके लिए कुछ टॉपर्स के ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, या फिर एक थोड़े दिन खुद ही रिसर्च कर सकते हैं कि मैं मेरी स्ट्रेटेजी कैसे बनाऊं. फिफ्थ वुड बी अ रियली गुड ऑप्शनल जो कि आप चूज करके ले रहे हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड वन ऑन योर कैपेबिलिटीज, कि आप मार्क्स भी ला सकते हैं एज वेल एज आप उस दैट कैन हेल्प यू एज अ गेट अवे फ्रॉम द जनरल स्टडीज, क्योंकि जनरल स्टडीज की पढ़ाई कई बार बोरिंग हो जाती है एंड मोनोटोनस हो जाती है. आपकी एक हिस्ट्री वही की वही रहनी है, ज्योग्राफी वही की वही रहनी है, तब एक ही चीज को कितनी बार पढ़ेंगी. तो देयर नीड्स टू बी सम गेट अवे. एंड द लास्ट थिंग इज में सिंपल है कि आप कहीं से भी पढ़ें, इंटरनेट से पढ़ें या फिर ऑफलाइन पढ़ें, दिल्ली में आके पढ़ें या खुद से पढ़ें, आपको दिस शुड बी सिंगल फोकस. मतलब रोमन सैनी जो है अनअकैडमी के, उन्होंने एक बार कहा था, मतलब काफी पहले उनका एक ब्लॉग में मैंने देखा दैट ही यूज दैट वर्ड रूथलेस फोकस. मतलब ये एक ही एग्जाम मेरी जिंदगी है फॉर दैट पर्टिकुलर टाइमिंग. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, बट फॉर दैट पर्टिकुलर मतलब शॉर्ट पीरियड, हाफ ईयर और 1 year, यू आर लाइक मेरे को घुस जाना बस, खत्म. दैट फोकस इज इट. Yes, sir. Now I would like to pass on to Komal. Yeah, absolutely right, sir. First of all, congratulations. Actually, आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली जो आपको बनानी थी, being IPS. So first of all, thank you for being here and for the guidance. So basic question everybody is asking. सब लोग यही question basically पूछ रहे हैं कि NCERT कितना रोल प्ले करती है for UPSC, कितना रोल प्ले करती है NCERT. यू नो NCERT का भी गाइडेंस ये है कि आप लोग 6 से 12 तक की पढ़ो या आप लोग 9 से 12 तक की पढ़ो, उतना काफी है. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मैंने आई थिंक इस चीज को पहले बहुत अच्छे से समराइज कर दिया कि यूपीएससी डायरेक्ट पूछता है एनसीईआरटी से, सो इट्स वैल्यू कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड. लाइक मतलब 2019 के प्रीलिम्स के पेपर में एक 5 year प्लान के ऊपर क्वेश्चन था, जो कि अगर किसी ने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी होगी 11th की, वो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. मतलब इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम देयर. और हिस्ट्री के क्वेश्चंस मोस्टली एनसीईआरटी से होते हैं. सो इसकी इंपॉर्टेंस कभी भी अंडररेट नहीं की जा सकती. रही बात क्लास 6 से 12 की पढ़नी है या 9 से 12 की पढ़नी है, 11 12 की पढ़नी है, द सिंपल आंसर वुड बी कि आप कितने कंफर्टेबल हैं. क्या आपका सोशल स्टडीज का नॉलेज अच्छा है? जब आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप एक न्यूज़पेपर उठाए हो, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, डू यू फील लॉस्ट? या क्या चल रहा है, पॉलिटिकल रिलीज क्या होती है, इलेक्शंस क्या होता है, क्या होता है, मेरे को कुछ पता ही नहीं है, पार्लियामेंट क्या होता है. इफ दैट इज द केस, गो टू क्लास 6. अगर आपको पता है कि हाँ पार्लियामेंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, देयर इज अ इलेक्शन सिस्टम, इलेक्शन कमीशन होता है, यूपीएससी बॉडी होती है, देन गो टू क्लास 9. अगर आपको अच्छे से इन डेप्थ पता है कि ये सब क्या क्या करते हैं, तो आप तो ऑब्वियसली अपने कोर्स के अंदर इतना घुस चुके हैं, तो बेसिकली इट वर्क्स कि आप 11th और 12th की पढ़ लें. So it depends on your level of understanding and preparation or knowledge, because see अभी कुछ लोगों का होता है जो कि 11th 12th में इकोनॉमिक्स के लिए होते हैं या फिर हिस्ट्री लिए होते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी. मैं साइंस लिया था, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा आती है, बट मुझे स्टिल जरूरत नहीं पड़ी. मेरे कुछ दोस्त हैं उनको जरूरत पड़ी. तो इट्स अगेन योर पर्सनल. या राइट, स्ट्रीम मैटर्स. अगर हमारा बैकग्राउंड अगर हमारा साइंस का है तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट 6 to 12. नो अगेन नो, दैट बेस आपका देखना पड़ेगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है. या राइट, अंडरस्टैंडिंग. कोई ग्राउंड रूल नहीं है, आपका अंडरस्टैंडिंग आप पहले असेस कीजिए, एंड द बेस्ट वे टू असेस इज
whether you feel lost while reading the newspaper or not. Yeah, okay, sir, right. Okay, you have talked about newspaper. So again, a question raised that newspaper का क्या एक effective और एक better way है read करने का? As you know, it takes around 3 hours thoroughly read करने में उसको. So, any guidance for that? एक न्यूज़पेपर में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। पहला होता है फ्रंट पेज होता है, फिर एक सिटी स्पेसिफिक पेज होता है, फिर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स होता है, फिर मेजर नेशनल न्यूज होते हैं, फिर एडिटोरियल्स होता है, फिर ओपिनियंस होता है, फिर एक स्पोर्ट्स पेज, फिर इकोनॉमिक्स का पेज होता है, किसी किसी में बिजनेस का पेज होता है, किसी किसी में आर्ट्स का पेज होता है, लास्ट में एक तो एक्स्ट्रा रैंडम पेज होता है। सो स्ट्रिक्टली फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, पहला पेज, देन गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह। सी मैंने कभी आज तक पॉलिटिक्स पढ़ी नहीं। अगर आपको पॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ा सा मसाला चाहिए, ट्विटर पर चले जाओ। न्यूज़पेपर करना है, मैं मेरे जैसे कि मैंने कहा, वो रुथलेस गोल है। मेरे को 1 घंटे के अंदर अगर न्यूज़पेपर खत्म करना है, तो आई डोंट नीड टू रीड द व्हिच आई डोंट यूज। पहला पेज पढ़ लिया मैं, गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर पढ़ लिया मैं, नेशनल न्यूज पढ़ लिया, सपोज हेल्थ इमरजेंसी है कहीं पे वो पढ़ लिया, फॉरेस्ट फायर है कहीं पे वो पढ़ लिया, कहीं पे ड्रॉट हो रहा है क्यों हो रहा है, कोई नई स्कीम का उद्घाटन हुआ है, या फिर कहीं पे किसी कोई सोशल मैल प्रैक्टिस चल रही है कहीं पे, वो पढ़ लिया मैंने। तो ये सब चीजें हो गई। फिर आपका आता है एडिटोरियल एंड ओपिनियन पेजेस, जिसमें कि आप अपने आप थोड़ा सा टाइम के बाद समझने लग जाते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप एक अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। सी द मेजर रीजन व्हाई यू टेक 3 hours to read newspaper is that first you don't understand the language of the newspaper, because editorials जो लिखते हैं, suppose जो कि इंडिया के फेमस एग्रीकल्चरलिस्ट हैं अशोक गुलाटी, या फिर प्रताप भानु मेहता जो कि इंडियन एक्सप्रेस में एडिटर हैं, मतलब उनकी लैंग्वेज मुझे आज भी पढ़ने में ना, मतलब मैं जब उनका एडिटोरियल पढ़ता हूँ आई स्लो डाउन। मैं कहा मुझे समझने दो, नहीं आता जल्दी से समझ। सो एक तो होता है लैंग्वेज का इशू, दूसरा होता है कि आपको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं कनेक्ट हो रहा होता। अगर सपोज आपने कहीं पे पढ़ दिया कि लास्ट वीक जो एक मर्डर का केस हुआ था बिकॉज ऑफ विच हंटिंग इन उड़ीसा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, अब आपको उड़ीसा का कोरापुट डिस्ट्रिक्ट विच हंटिंग क्या होता है लास्ट वीक हुआ था, तो जब आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो वो लूप बन जाता है। आप एक चीज समझिए, कोई भी न्यूज 1 महीने के लिए, 1 दिन के लिए नहीं रहती, वो 1 महीना, 1 दिन, 2 हफ्ता, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता वो रहती है, वो आती रहती है वो। तो वो जब एक लूप बनना शुरू हो जाता है ना, जब से भी आप शुरू करते हैं तो कंटिन्यू हो जाता है वो। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूज़पेपर पढ़ने में। जो 3 घंटे से वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है 2 से 3 महीने में, डिपेंडिंग आपकी इंग्लिश कितनी रोबस्ट है, कि आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, बिकॉज आप बेहतर समझना शुरू कर देते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है आपको, उसका बैकग्राउंड क्या लाइक कर रहा था। एंड आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, ऑलवेज कीप इन माइंड, मैं ये चीज शुरू में एम्फसाइज करना भूल गया, यूपीएससी इज अ एग्जाम जो कि अपने सिलेबस से पूछता है। अब इसका सिलेबस इतना वास्ट है कि वो उसके सिलेबस से ना भी पूछे तो भी वो पूछ ही लिए। बट जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप पॉइंट आउट कीजिए कि ये आर्टिकल इसके सिलेबस से रिलेट हो रहा है नहीं, और आप कर पाएंगे। समझ रहे हैं? अगर एक सपोज एडिटोरियल आता है कि आपका लेट्स से कोविड मैनेजमेंट पे, तो GS2 का पेपर, मेंस का पेपर में एक टॉपिक है हेल्थ, वो डायरेक्टली रिलेट हो रहा है, ठीक है। अब एक अगर एडिटोरियल आया कि सपोज हाउ द बीजेपी और हाउ कांग्रेस और एनी पॉलिटिकल पार्टी इज विनिंग वेस्ट बंगाल इलेक्शंस और नॉट, ठीक है, तो वो चीज देखिएगा सिलेबस में नहीं मिलेगी। पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, कहीं पे इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस हो रहा है वो मिलेगा। सो आप टॉपिक से चिपक के कॉन्टेक्स्ट बनाते हुए, स्पीड बढ़ाते हुए अगर आप करेंगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली 1 से 1.5 घंटे में इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती, वो ओवर टाइम आ जाता है। Yeah, okay, sir. Thank you. Now over to Rashika. So a long-driven question with reference to NCERTs, and one which has popped up in the chat box now. So which says that whether we should prefer old NCERTs or new NCERTs. What would you like to say on this? Okay, so this is a very dicey question because मैंने कुछ पुरानी पढ़ी और कुछ नहीं पढ़ी है, ठीक है। मैं प्रॉपरली कभी सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ा हूं, बट आई विल से कि पुरानी एनसीईआरटीज और नई एनसीईआरटीज में कंटेंट का इतना ही डिफरेंस होने वाला है। सी अभी हिस्ट्री है, ठीक है, अब जो बिपिन चंद्रा सर ने लिखी थी हिस्ट्री और जो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री 11th 12th में बदल तो नहीं जाएगी, सेम ही रहेगी, है ना।
अब जब आप कॉलेज से शुरू कर रहे हैं, अब अगर आपको हिस्ट्री पता है, आप एक बार रीड दे लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़िए। एक टाइम आया था जब ये होने लग गया था कि पीपल वर टेलिंग कि तमिलनाडु के एनसीईआरटी से कर लो, हिस्ट्री की क्वेश्चंस आते हैं। उस एक साल 4 क्वेश्चंस आते, उसके बाद से क्वेश्चन ही नहीं फंसते उससे। मेरा एक दोस्त है जो कि मेरे स्कूल मेट है, वो पहला 2019 का अटेम्प्ट में है, वो तमिलनाडु के एनसीईआरटी से पढ़ लिया पूरा। बोले क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। फिर वो बेचारा अभी स्क्रैम्बल कर रहा है मीडिएवल हिस्ट्री सतीश चंद्र की पढ़ने के लिए और एंशिएंट हिस्ट्री आर एस शर्मा की पढ़ने के लिए। समझ रहे? बट मेरा अभी ऐसा सीन है कि मैं Excuse me, sir. So I think you have muted yourself. सॉरी, आई एम सॉरी। अब मुझे मेरे साथ ऐसा है कि मैं नई इंडियन हिस्ट्री पढ़ लूं। क्यों? अब नई इंडियन हिस्ट्री में कुछ चीजें नई ऐड हुई होंगी, कुछ चीजें हटा दी गई होंगी। तो जो हटा दी गई है पुरानी से ले लो, ऐड की गई है नई से ले लो। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, दैट्स इट, सिंपल। Okay, sir. Komal, will you continue? Yeah, okay sir. बेसिक क्वेश्चन अगेन, हमको कोचिंग स्टार्टिंग में स्टार्ट करनी चाहिए या एट द एंड, जब हमारे हाथ में कुछ हो कि हाँ हम कर सकते हैं, जब उस कोचिंग की तरफ अप्रोच करें या फिर पहले से ही कोचिंग की तरफ अप्रोच करें? ओके, कोचिंग की जरूरत क्या है? गाइडेंस, Yes, स्टडी sir. मटेरियल्स। Yes. Sir, you have muted again. कोई इशू हो रहा है? ओके, सो मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ एंड मैंने तो मतलब बीटेक कर रखा था। देयर इज नो कोरिलेशन विद आर्ट, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनीथिंग। बट मुझे कभी गाइडेंस की जरूरत फील नहीं की, बिकॉज जब मैं इस यूपीएससी में उतरा बेसिकली, तो मैं इतनी अच्छी से रिसर्च कर लिया था कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने दिनों में पढ़ना है, कि मुझे गाइडेंस की जरूरत नहीं हुई। आई जस्ट मेड अ डिसिप्लिन टाइम टेबल कि मेरे को इतने दिनों में ये चीज कंप्लीट करते जानी है, आई वेंट थ्रू इट। आप एक काम कीजिए, अगर आपको ये डिसाइड करना है कोचिंग लेना है नहीं लेना है, सी फर्स्ट इट्स अबाउट पर्सनल डिसीजन कि आपको लेना है नहीं लेना है। अगर आपको लेना है, ठीक है, अभी मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। अगर आप एनसीईआरटीज में अच्छे हैं, अगर आपको 11th ट्वेल्थ की एनसीईआरटी पूरी समझ आ रही है, आपका नॉलेज बेस स्ट्रांग है, ठीक है, तो इट्स, मेरे हिसाब से अगेन इट्स वेरी पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, यू डोंट नीड कोचिंग, ठीक है। बट अगर आपको हल्का सा भी डाउट है कि यार मेरे से होगा नहीं होगा, या फिर मेरे को लग रहा है कि मेरा स्ट्रेटेजी के गलत खा सकता है, तो आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। अभी क्या हुआ था, जैसे मैंने आईआईटी की कोचिंग ली थी, सो आई नो व्हाट कोचिंग बेसिकली ऑफर्स। इट ऑफर्स यू गाइडेंस, इट डज नॉट ऑफर्स यू नॉलेज। दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। वो तो आपको डीपीपी शीट से देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। बट व्हाट मेजरली इट ऑफर्स इज गाइडेंस। तो वो गाइडेंस अगर आपके पास है, सपोज आपके कोई भैया हैं या फिर कोई बहन है या फिर कोई नोन में रिलेटिव है जो कि कर रखे हैं, जो कि आपको अच्छे से गाइड, सी पर्सनल गाइडेंस बहुत जरूरी है यूपीएससी में। हलवा नहीं है, 3-4 साल तक आपको देख के गाइड करता रहे, आपके आंसर्स देखता रहे, कैसे लिख रहे हैं, स्ट्रेटेजी सही है या नहीं है, दैट इज वेरी नेसेसरी। आपको पर्सनल गाइडेंस तो नॉट मच नीडेड, बट यूजुअली ऑप्शनल्स वगैरह के लिए आपको कोचिंग लगती है, ऑप्शनल स्पेसिफिक कोचिंग करनी ही पड़ती है, बिकॉज उसके बिना कोई गति नहीं है। ऑप्शनल तो बेसिकली आपको एक एक्सपर्टीज लाना पड़ता है। एंड जीएस की कोचिंग जो है उसमें बेसिकली अगर आप थोड़ा सा खुद से पढ़ लेते और आपका अच्छा ग्रिप है तो इतना नहीं लगेगा, बट अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि स्ट्रेटेजी ऊपर नीचे हो सकती है, फिर दिक्कत हो सकती है, टेक कोचिंग, इट विल बी बेनिफिशियल। Yeah, okay sir. Somehow we get to know कि क्या होता है, बोला तो जाता है कि वास्ट इसका सिलेबस है, एंड somehow हम क्या करते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी इस तरीके से प्लान करते हैं, हम लोग सिलेबस एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, ऐसा होता है। तो इससे कैसे, इसका क्या सोल्यूशन है? ये होगा नहीं जल्दी से कि आप सिलेबस एक्स्ट्रा पढ़ लें, ये होगा कि आप सिलेबस से गलत पढ़ रहे हैं। गलत भी कर सकते हैं। अभी आप सपोज कीजिए कि इंटरनल सिक्योरिटी में एक टॉपिक है कि वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट्स, पेपर 3 का मेंस का टॉपिक है। आप ऐसा हो सकता है कि आपको टॉपिक मिस ही कर दिए, या फिर आप इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस में चले गए, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, अपना स्कोप ब्रॉड कर दिए जबरदस्ती का। आपको मैंने क्या कहा, जो रूथलेस फोकस है वो खाली एग्जाम प्रिपरेशन में नहीं है, वो क्या पढ़ना है, कितना टाइम वेस्ट करना है, कितना नहीं करना है। बेसिकली डोंट डू एनीथिंग और एवरीथिंग व्हिच माइट हैम्पर योर, मतलब
सिंपल सी चीज कीजिए कि अगर आप एक दिन वेस्ट कर रहे हैं, 2 साल की प्रिपरेशन है, एक दिन वेस्ट कर रहे हैं। मैं ऐसा करता था कि एक दिन सोच रहे थे कि अगर एक दिन वेस्ट करें, 1 मार्क गया। 700 दिन की प्रिपरेशन है, 700 मार्क्स जीएस में आने होते हैं, 800 आने होते हैं एक्चुअली, तो रफली 1 और 1.2 मार्क्स। अगर मेरे गए नंबर तो मेरी प्रिपरेशन छूटी, है ना। अभी कुछ लोग होते हैं जो कि मंथली मैगजीन हर महीने के एंड में पढ़ते हैं, ठीक है। मैं एक चीज पूछता हूं, आप हर महीने के एंड में तो पढ़ लिए, एग्जाम या फिर प्रीलिम्स या मेंस से पहले आप उसको रिवाइज भी करेंगे। अब एक मैगजीन पढ़ने के लिए आपको 1 दिन लगता है, साल में 12 दिन आप वेस्ट किए। वो 12 दिन में आप कुछ और पढ़ लो ना, ऑप्शनल एक और बार रिवाइज कर लो। आपको क्यूमुलेटिव देखना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द आप क्यूमुलेटिवली कितना पढ़ रहे हैं। With the hard work, smart work is needed actually. यस, ये सिंपल काली ऐसे नहीं पढ़ पढ़ के निकल जाएगा। बिल्कुल सर। Over to you, Rashika. Yeah. So the next question is, and the question has been raised by Yugam, that how to work on personality evaluation in order to get it polished to the levels demanded by the interview panel. इंटरव्यू पैनल, ओके। सो आप थोड़ा सा अगेन रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन को? Sure, sir. So the question says, how to work on personality evaluation in order to get it polished to the levels demanded by the interview panel. ओके। आप न्यूज में देखते होंगे, रिक्शा पुलर का बेटा आईएएस बन गया, पेट्रोल पंप में जो वर्क करता था उसका बेटा आईपीएस बन गया। आपको लगता है कि उनकी पर्सनालिटी एकदम मतलब धमाकेदार है? नहीं ना। पर्सनालिटी क्या होती है? पर्सनालिटी का बेसिक सिंपल कंपोनेंट्स होता है, वेदर यू आर कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ, वेदर जो आप बोल रहे हैं आप उसमें कन्विक्शन रखते हैं नहीं रखते हैं, वेदर यू हैव इंटेग्रिटी और नॉट, वेदर यू कैन कन्वे योर थॉट्स प्रॉपरली और नॉट, वेदर यू आर प्रेजेंटेबल और नॉट, whether you can handle pressure, whether you can manage time, whether you can speak in less. ये जो चीजें होती है ना, ये धीरे धीरे हो जाती हैं। एग्जाम में प्रेशर मैनेजमेंट आप सीख जाते हो, टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाते हो, ठीक है। अब एक मजे की बात, अगर आप अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो आपको जीएस में नंबर ही नहीं आएंगे। आपको 150 मार्क का 250 मार्क का पेपर है एंड आपको लिखना होता है 3 घंटे में, 50 पेज भरने हैं, तो आपको लगता है कि अगर आप इफ यू बीट अराउंड द बुश यू कैन क्लियर द मेंस, यू वोंट बी एबल टू। सो वो प्रिपरेशन में ही आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था अनुष्का को कि जब आप कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज के कुछ टाइम को यूटिलाइज कीजिए। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आप स्टूडेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, कुछ लीडरशिप पोजीशंस में काम कीजिए, तो आपको पता लगता है कि अच्छा लोगों से ऐसे डील करना है, या फिर अच्छा लोग ऐसे सोचते हैं, मेरे को ऐसे काम करना है, मेरे को ये तरीका पसंद है। अपना एक पर्सनल स्टाइल डेवलप हो जाता है आपका वहां से, अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा क्या है। ठीक है। तो ये एक बात। तो दूसरी बात ये है कि इंटरव्यू पैनल, जो आप इंटरव्यू पैनल की बात कर रहे हैं, वो आपसे किसी भी तरीका का पर्सनालिटी डिमांड नहीं करते हैं। लेट मी टेल यू क्लियरली, उनको ये चाहिए कि जो लड़का आ रहा है या जो लड़की आ रही है, विल शी बी एबल टू एडमिनिस्ट्रेट टू द फुल ऑफ हर कैपेसिटी विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डू गुड टू द पीपल व्हाइल अपहोल्डिंग द वैल्यूज। उनको एक करप्ट इंसान नहीं चाहिए। अभी यार मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, जब इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं रफली 60-65 ईयर्स के होते हैं, एंड एवरी पर्सन हैज एन एक्सपीरियंस अबाउट 35 ईयर्स। 5 पैनल बैठे हैं, 5 मेंबर, 35 into 5 175 ईयर्स के एक्सपीरियंस के सामने यू हैव 0 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड आपको लगता है कि आप जाकर फेक कर लोगे। इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब वो चुटकियों में पकड़ लिया जाता है, चुटकियों में वो फंबल करेंगे ना, वो पकड़ लेंगे कि हाँ यार कुछ गलत है। एक किस्सा बता दे रहा हूं, हमारे टाइम पे हुआ था। एक जो चेयरवुमन थी, उन्होंने पूछ लिया कि एक लड़के से कि उसकी हॉबी थी, तो उसकी हॉबी में उसने लिखा था ट्रैकिंग। तो उस लड़के को पूछ लिया कि तुमने कहाँ पे ट्रैकिंग करी है, तो उसने हरियाणा के किस जिले का नाम बता दिया। उसकी किस्मत खराब, सोच लीजिए कि वो कलेक्टर, वो जो मैडम थी वो उस जिले की कलेक्टर रह चुकी थी अपने टाइम पे।
तो उन्होंने पूछा था कि जब तुम ये ट्रैकिंग कर रहे थे तो यहाँ पे एक रिवर आया होगा, उसका नाम क्या था? अब वो कलेक्टर रह चुके, उनको पता है, इस बंदे को नहीं पता कि वो कलेक्टर रह चुकी हैं, ये यहाँ पे फेंक रहा है, पकड़ लिया गया। एंड बुरी तरीके से, मतलब आप बेसिकली समझिए आप अपना पूरा चांस जो है लूज आउट कर देते हैं। सो डोंट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इंटरव्यू, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द पोस्ट, फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इंटरव्यू अपने आप सेल आउट कर देंगे। Okay, sir. Thank you so much. Komal, can you continue? Yes, Pratibha. Okay, sir. Chat box is full with asking consistency. कैसे हम थ्रू आउट द यूपीएससी प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी को अपहोल्ड कर सके? एक ट्रेन है, एक ट्रेन को कंसिस्टेंटली बहुत लंबा जाना है, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि उसमें फ्यूल हो, ठीक है, और उसके सारे पार्ट्स ठीक ठाक हों, एवरीथिंग इज चेक्ड अप एंड गुड, ठीक है। सो इफ यू आर द ट्रेन, फ्यूल इज द मोटिवेशन एंड एवरीथिंग राइट मीन्स दैट आपका फोकस एक ही जगह है। दैट कंसिस्टेंसी इज गोइंग टू बी अचीव्ड बाय, आप ये फाइंड आउट करें कि आपको क्यों करना यूपीएससी, दैट रीजंस नीड्स टू बी वेरी स्ट्रांग एनफ। यार अब जो भी पूछे थे ना इंटरव्यू वाला क्वेश्चन, खुद से पूछे कि मेरे को क्यों बनना है सिविल सर्वेंट। अगर आप उस चीज का आंसर दे पाते हैं ना तो आप सही हैं, आप इस ये मतलब रेस में उतरने के लिए सही हैं, आई विल से, ठीक है। द सेकंड थिंग इज कीपिंग योरसेल्फ हेल्दी एंड फिट, दैट इज डिस्ट्रैक्शंस कम करना, ठीक है। एक रूटीन में आना बहुत जरूरी होता है यूपीएससी के लिए। मेरा ऐसा मानना है दैट व्हेन यू आर इन अ रूटीन योर चांसेस गेट बेटर, बिकॉज आपके डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। देन थोड़ा सी क्या होता है, जब तुम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना यूपीएससी के बारे में, आप पॉलिटी के बारे में पढ़ लिए, आपको ना ऐसा लगता है कि यार मैं सब कुछ जानने लग गया हूँ, मतलब दोस्तों के सामने बैठे हो यार, अब आज तो पूरा का पूरा उन्हीं को पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ाई देंगे हम, वो नहीं करना है। आपका गोल है यूपीएससी करना, वो करो, उनको करना है लक्ष्मीकांत, वो कर लेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऐसे नहीं आती कि आ जाएगी, कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है, रूटीन बनाना पड़ता है, अपने डिस्ट्रैक्शंस कम करो। सोशल मीडिया अगर डिस्ट्रैक्ट करता है तो कम आउट ऑफ इट, ठीक है। फाइंड अ गुड मोटिवेशन, व्हाई डू यू वांट टू डू इट, एंड एक रूटीन फॉलो करना एट द एंड ऑफ द डे इज, मतलब एक आर्मी वाले को कंसिस्टेंट कैसे बनाया जाता है, एक रूटीन होती है उनकी। मैंने क्या बताया, आईपीएस की ट्रेनिंग में क्या होता है, सुबह 5 बजे उठो, 8 बजे तक एक्सरसाइज, 9 से 2 क्लासेस, फिर ब्रेक, फिर स्पोर्ट्स, फिर ब्रेक, फिर अपना टाइम। दैट इज हाउ यू मेक कंसिस्टेंसी, रिपीटेशन। Okay, sir. So consistency required schedule, a timetable. Okay. Yes, sir. it will So be better. again, okay, sir. So again, a question about optional subject. How to opt or strategy to opt a perfect optional subject. जैसे कि मैंने पहले बोला, पहला रिक्वायरमेंट ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट का कि वो आपको जीएस से गेट अवे दे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बहुत बोरिंग हो जाती है धीरे धीरे, तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपको इंटरेस्ट बनाए रखे। सेकंड थिंग इज जो आपको एक अच्छा नंबर ला के दे। ऑप्शनल सब्जेक्ट इसलिए नहीं है कि पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग है, कुछ ने किसी ने फिलोसफी ले लिया पढ़ने के लिए, भाई बहुत इंटरेस्टिंग है फिलोसफी, नहीं वो नहीं करना है, ऐसा जो कि नंबर ला के दे आपको, ठीक है। सो जैसे मेरा ग्रेजुएशन मैकेनिकल है, बट आई ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स बिकॉज मैथमेटिक्स में नंबर अच्छा आता है एंड आई फील आई हैव अ गुड ग्रिप ओवर इट। सो फाइंड आउट कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर है। मतलब आप जैसे सपोज सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन करें तो सोशियोलॉजी ले लिए, लॉ में करें तो लॉ ले लिए, कुछ इंजीनियर्स होते हैं एंथ्रोपोलॉजी ले लेते हैं। इंजीनियर्स मेरा एक फ्रेंड है वो सोशियोलॉजी लेके बैठा है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि आप you find a subject which comforts you, which is marks fetching very importantly, and which actually मतलब आपको यार इंटरेस्ट चाहिए उसमें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक सब्जेक्ट ले लें जस्ट बिकॉज इट्स मार्क्स फेचिंग बट यू डोंट हैव एन इंटरेस्ट। अगर कोई सोशियोलॉजी वाला मैथ्स ले लिया ना वो पिस जाएगा, और मेरे जैसा बंदा अगर मैं बता रहा हूँ फिलोसफी ले लिया ना, मैं पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन ही छोड़ देता। सो नीदर ऑफ इज वारंटेड, जो आपको सही लगे वो करो, मतलब marks plus interest, that is important. Okay, a worthy choice should be there. So a question about current affairs, sir. करंट अफेयर्स की तरफ हम कैसे अप्रोच करें, क्या पढ़ें उसके लिए? सिर्फ न्यूज़पेपर इज इनफ या मैगजीन्स आर इनफ? न्यूज़पेपर्स आर इनफ, बोलिए क्या कंटिन्यू।
newspapers are enough, magazines are enough, or that internet is enough? So, I think newspapers will be the best source for current affairs because see यूपीएससी में अगेन आपको 1 से 1.5 घंटे में खत्म करना है. आपको बाकी चीजें भी तो करनी है. आप 2 घंटा न्यूज़पेपर में लगा दिए तो भाई आप बाकी टाइम पे क्या करोगे? आप अपना रोज का कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे ना. तो फ्रंट पेज हो गया, स्कीम्स हो गई, कहाँ पे कोई सोशल मैल प्रैक्टिस चल रहा है, अगेन सिलेबस से रिलेट कीजिए, इकोनॉमिक्स का पेज पढ़ लीजिए बिकॉज दैट इज समटाइम्स इंपॉर्टेंट. एडिटोरियल्स पढ़ के अपने ओपिनियन फॉर्म कीजिए. मोर इंपॉर्टेंट इज हाउ यू थिंक, दैट इज नेसेसरी इन दिस प्रोसेस. यू शुड नो हाउ टू थिंक. ठीक है. एंड न्यूज़पेपर में किसी को स्पोर्ट्स सेक्शन पसंद है, भाई ऐसा होता है कि वो पहले स्पोर्ट्स सेक्शन खोल रहा है, खोलिए. बट थिंग इज डोंट गो ओवर लिमिट. 1.5 घंटा खत्म न्यूज़पेपर बंद करो, दूसरा टॉपिक में मूव करना. ये नहीं कि 2 घंटा तक खींच लिए, वो नहीं चलेगा. कि मतलब वो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा. जब आप सिलेबस से रिलेट करना शुरू करोगे ना तो आपको पता लगेगा ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना. पॉलिटिक्स अवॉइड कीजिए. स्पोर्ट्स इंटरेस्ट है तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, अदरवाइज नहीं. आर्ट्स का जो पेज आता है वो भी जरूरत नहीं है. एडिटोरियल्स में आपको थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है अपना खुद का पैटर्न डेवलप करने के लिए. एंड सिटी वगैरह की न्यूज दिल्ली, इंदौर, मुंबई नहीं चाहिए. नॉट नीडेड. यू कैन लीव इट. नेशनल न्यूज पे ज्यादा फोकस. yeah, okay, sir. Rashika, over to you. So the next question says, what would you like to elaborate on note making? That how shall we prepare precise notes that shall facilitate the revision at the end of the examination? Okay, so notes making is a tricky subject for me because काफी लोग होते हैं कि जो ऑनलाइन नोट्स बनाना पसंद करते हैं, काफी होते हैं ऑफलाइन. आई एम द काइंड ऑफ मिक्स. मैं करंट अफेयर के जब मैं नोट्स बना रहा था 2019 में, सो आई वाज मेकिंग इट ऑनलाइन बिकॉज रेगुलरली सी करंट अफेयर्स अपडेट होता रहता है. कुछ ऐड करना है मैं इजीली ऐड कर सकता हूँ. बट मैं जब मेरे हिस्ट्री या फिर पॉलिटी के नोट्स बनाया, आई मेड इट ऑफलाइन बिकॉज वो ज्यादा चेंज नहीं होता. दैट इज मोर और लेस कॉन्स्टेंट. एंड ट्राई टू राइट इट इन लेस वर्ड्स. प्रिसाइज करना है. जब आप व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स, स्टिक टू द डेफिनेशन ऑफ नोट्स. ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दिए. कम लिखो, पॉइंटर्स में लिखो. एंड आपको बेहतर पता है कि आप कैसे रिवाइज करते हो लास्ट में. तो सी नो योरसेल्फ बेटर. आप अपने आप को बेहतर पहचानो कि आप कैसे पढ़ते हो और उसी हिसाब से आप नोट बना सकते हो. अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना पसंद है तो आप ऑनलाइन बना लो. मेरे को लैपटॉप पे पढ़ने से मेरा आंख में स्ट्रेन होता है, सो आई प्रेफर कि मैं ऑफलाइन पेन पेपर पे पढूं. और मेरे साथ ऐसा है कि आई फाइंड दैट कि आई हैव अ गुड रीडिंग स्पीड इन पेपर एंड मैं फास्ट जो है चीजों को मेमोराइज कर पाता हूँ. मैं इसलिए पेपर में पढ़ता हूँ. ऑनलाइन में मेरे साथ होता है कि वो गलती से एवरनोट खोलते यूट्यूब भी खुल जाता है और मेरा पूरा टाइम की लग जाती है. तो वो चीज नहीं चाहिए. अगेन आपकी क्या वीकनेस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप उस पर कैपिटलाइज करेंगे. Okay, sir. Thank you. Over to you, Komal. Okay, sir. आप साइंस स्ट्रीम से हैं बेसिकली. सो साइंस स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं मेनली कि आपने इन पॉइंट्स कि आपने क्या स्ट्रेटेजी प्लान की थी और कितना डिफिकल्ट ये आपके लिए रहा था यूपीएससी. डिफिकल्ट मेरे लिए उतना ही था जितना भी किसी के लिए भी था. आई जस्ट नीडेड 1 सीट एंड हर एक को एक ही सीट चाहिए होती है. सो बेसिकली द डिफिकल्टी इज सेम. ग्राउंड लेवल पे हर कोई स्टार्ट वहीं पे करता है. बिकॉज मेरे से पहले जो दिया था उसके लिए उसका पहला अटेम्प्ट भी उतना ही डिफिकल्ट रहा जितना कि मेरे लिए मेरा पहला अटेम्प्ट डिफिकल्ट रहा. कुछ मेरी स्ट्रेंथ है, कुछ उसकी स्ट्रेंथ है ना. अभी जैसे सपोज आपका सोशियोलॉजी में बीएससी है या फिर मैथमेटिक्स में एमएससी है, आप वो अपना सब्जेक्ट ले सकते हैं. बट अगेन यू विल हैव द लक कि आप जीएस में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर रहे. यूपीएससी इज अ वेरी गुड बैलेंसर. वो आपको एवरेज आउट कर देता है. एंड अप टू द क्वेश्चन की मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ. सी कनिष्क कटारिया ऑल इंडिया रैंक 1 जो कि 2019 में थे. कटारिया सर आईआईटी बॉम्बे सीएससी. क्या कहते हैं अतुल प्रकाश सर ऑल इंडिया रैंक 4 2018 मैथ्स था उनका. ऑल्सो फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड. मेरे एक मामा जी हैं जो कि आईआईटी बीएचयू के हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग. आईएएस ऑफिसर हैं ऑल इंडिया रैंक 34 इन 2013 साइंस बैकग्राउंड. जो गजपति के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं ही इज ऑल इंडिया रैंक 29 2013 और 12 साइंस बैकग्राउंड एनआईटी राउरकेला से करें. सो देयर इज नो नथिंग की बात आप नहीं कर सकते.
स्ट्रैटेजी यही है कि आप पहले असेस कर लीजिए कि आप कैसे हैं, मतलब कैसे हैं का मतलब है कि आपके एनसीईआरटी या फिर सोशल स्टडीज पे क्या होल्ड है, एंड आप उस हिसाब से प्लान कीजिए। बिकॉज साइंस में यूजुअली होता है कि आप सोशल स्टडीज से टच छूट जाता है, मतलब थोड़ा सा ना डिस्टेंस हो जाता है, ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री घुसने के बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ नहीं आती, बट वो हो जाता है दैट ओवर टाइम। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे एक क्लास मतलब 6 से 10th की एनसीईआरटीज को अगर आप एक बार रीड करिए फटाफट, so you will get to know that what are your strengths and weaknesses. That will be not any big issue. Yeah, okay, sir. So, sir, it is necessary that a person with only high IQ level will be successful in their life? As I have seen your mock interview, and the panelists have asked you this question as well. मैंने क्या आंसर दिया था, अगर आप देखें तो आप बता पाएंगे। या आपने आंसर दिया था बोथ बैलेंस में होना चाहिए, सिर्फ Exactly. IQ is not going to lead you that part. Emotional question is also necessary. But for all, I want your In Nazi Germany in World War II, the method adopted by Adolf Hitler for his generals, army generals, was the person who were having very high IQ. They were of the persons with IQ of 140 plus. But did they do any good work? No. एक गांव में एक पेड़ लगाने वाला गार्डनर है या फिर एक सरपंच है, उसके गांव में वो कुछ कर रहा है, जरूरी है क्या वो हाई आईक्यू का हो? नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वेश्चन एंड इंटेलिजेंस बोथ आर नेसेसरी। अगर आप वहां पे ईक्यू मिसिंग था, यहाँ पे ईक्यू ज्यादा है सरपंच वाले केस में, बट अगर बीच का देखोगे तो ज्यादा मोर इफेक्टिव हो जाता है। आप में इंटेलिजेंस भी है सो दैट यू कैन एनालाइज थिंग्स, बट आप में एम्पैथी भी है कि आप किसी को हेल्प करने की इच्छा रखते हैं। इट्स अ बैलेंस, एवरीथिंग नीड्स टू बी अ बैलेंस। and how to balance it? आपको डेवलप करना पड़ेगा। सी आप आईक्यू तो डेवलप कर सकते हैं, मतलब विद प्रैक्टिस आप अपनी इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं। आप जैसे मैथ्स में होता है, आप प्रैक्टिस करते 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 अपनी एफिशिएंसी Practice and बढ़ा। the knowledge gain. फॉर इमोशनल क्वेश्चन आई थिंक यू नीड टू डेवलप अ वे ऑफ थिंकिंग विच यू थिंक, मतलब इट्स अ वेरी ट्रिकी डोमेन। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ईक्यू डेवलप करने का कोई तरीका नहीं होता। ईक्यू आपके सोशल अपब्रिंगिंग से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। मतलब अभी फॉर एग्जांपल सपोज एक बच्चा न्यूयॉर्क में बड़ा हुआ है, so he won't have a better he won't even have a good understanding of how people were in Kalahandi, ठीक है, but I will have a better understanding of how people are in Kalahandi and I will have more empathy towards them, so that's it कि मेरा सोशल अपब्रिंगिंग कैसा रहा था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप जब चीजों को देख के आप किसी का पेन समझने का कोशिश करते हैं, तो आप अपने आप धीरे धीरे वो इमोशनल क्वेश्चन डेवलप करना शुरू कर देते। यू शुड ऑलवेज बी ऑफ द माइंड ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम हर एक के पास है, हर एक के पास है, मतलब दैट इज नो डाउट कि किसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है। किसी ना किसी की, मतलब हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आप हर एक की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, बट समाज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको नजरिया डेवलप करना पड़ेगा। Rashika, over to you. Can you please continue? I will continue, Komal. Thank you. Yeah. So, sir, in the end, I would say it was a really great session. You answered all our questions in very deep detail and with really good understanding and examples, not to question on that. It was really good interacting with you. And I would like to call Rashika to place our final vote of thanks for having you here, for you giving us your precious time and knowledge, sharing it with us. Thank you, sir. A warm and cherished evening to our most valued, honorable guest, Mr. Rahul Goyal, and all my fellow mates. It is my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked hard to make this event a success. I would be honored to thank Mr. Goyal for deriving his precious time out of his heavily packed schedule to impart the knowledge to the forthcoming aspirants regarding balancing their college academics along with CSE preparations and much more along with this. I would also like to thank Anushashan, the Civil Services Society, for organizing this great event, and the members of ACSS who have worked remarkably hard to get it moderated as it actually should have been. Finally, extending a heartiest thanks to the students, rather civil service aspirants, for across the nation
pursuing their active participation and curiosity, which indeed worked as the driving force for us all and inspire us to work at our best to make this event a success. Thank you. I would like to thank you for patiently listening to me, and I hope I was able to clear all your doubts and queries. And I wish all of you really best of luck and all the best for those who want it, those who want to go for UPSC. I'm sure that if you have a will and if you have a motivation, this exam is not impossible to crack. It's very possible to crack, and I am myself a testament to this that your social background does not matters much, but what matters is whether you have the willpower and the motivation to do it. And I will all of you best of luck in this journey. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Satish,